Hello everyone, I am Rita. Today I will teach you data structure, graphs in data structure and traversing of graph. So, what is graph? A graph is a pair of sets V and E. V means where V is the set of vertex and E is the set of edges connecting the pair of vertices. Like A is represented as a vertex and B is also represented as a vertex. Then A is connected by a S to B. Like this, there are number of vertices in this graph, that is A, B, C, D, E, and E represent the edges of this graph. Like A to B, this one represent the edge of a graph, A to C, B to D, and C to D, and D to E. What is vertex and what is edge? Adjacency means two nodes or vertices are adjacent if they are connected to each other through an edge. For example, अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो क्या है एडजेसेंसी का मीन क्या हुआ यहाँ पे मीनिंग A is adjacent to B and A is also adjacent to E and A is also adjacent to F. Next one is path. Path represents a sequence of edges between the two vertices. In the following example, A, B, C, D means A, B, C, D represent a path between from A to B. And next one is types of graphs. Two types of graph here. First one is undirected graph and second one is directed graph. An undirected graph is a graph where the edge do not have any specific direction, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल like this. In this graph, इसमें इस ग्राफ के अंदर क्या है, हमने कोई भी डायरेक्शन क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रखी है. तो दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स वी रिप्रेजेंट एनी डायरेक्शन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स. लाइक दिस, फ्रॉम ए टू बी हमने क्या किया, यहाँ पे ए टू बी हमने क्या किया, एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी, ए टू सी एंड सी टू डी. So this is directed graph. Next one is operation performed on graph. The operation on graph vary as per user's requirement. However, the operation commonly performed on a graph are as follows. First one is हम different type के operation data structure में perform करते हैं, but जो particular graph के अंदर हम operations को perform कर रहे हैं, that is creating a graph. नेक्स्ट वन इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रावर्सिंग अ ग्राफ. इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ट्रावर्सिंग अ ग्राफ बिल्कुल डीपली हम क्या करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ ग्राफ. क्रिएटिंग अ ग्राफ implies to store the graph in computer memory using a particular graph representation. The graph can be created using adjacency matrix और adjacency list. हमारे पास दो चीज़ें हैं, adjacency matrix और adjacency list. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ को क्रिएट करते हैं. फर्स्ट वन इज adjacency matrix representation. An adjacency matrix has the same number of rows and column as there are nodes in the graph. If there is a relationship between the node, then the row and column designing the node would indicate that relationship exists. A one represent that a relationship exists. I will give you an example like this. This is undirected graph. तो हमारे इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 1 2 3 4 5. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट होगी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स.
हमारे पास 5 वर्टेक्स हैं, तो 5 नंबर ऑफ रोज 5 हमारे पास रहेंगे, और नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे पास कितनी, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने रहेंगे, 5 5। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, हम क्या देखेंगे, ए टू ए हमारे पास कोई सेल्फ लूप बन रहा है, नो। तो जो जहाँ पे भी हमारे पास कोई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किससे, तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी, सो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन, ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डी, देन हम अगेन उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। एंड ए इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ई, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। तो ऑल ओवर जो हमारी पूरी मैट्रिक्स बनेगी वो इसी बेसिस पे बनेगी। अगर सी से कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, जैसे सी से क्या है, ए डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड सी से हमारे पास क्या है, डी जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको भी हमने क्या किया, 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ के में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्शन शो कर रखी होती है एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स की तरह, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों तरह की वर्टेक्सेस हमारे पास होती है। तो यहाँ पे क्या है, A is connected to A, no, तो that is 0। so वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। एंड A is देखो A से क्या है हमारे पास, B पे, A किस पे, B से, A से B पे जा रहा है, तो क्या करेगा वो, 1 रिप्रेजेंट करेगा। A इज डायरेक्टली, डायरेक्शन कहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी पे, तो वो भी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ए से डी पे कोई डायरेक्शन नहीं जा रहा है, दैट इज 0, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ए इज नॉट कनेक्टेड टू दी ई, एंड कोई भी डायरेक्शन शो नहीं हो रहा है, तो हम उसको भी क्या करेंगे, 0। तो हमारी पूरी जो मैट्रिक्स है इसी बेसिस पे बनेगी। जैसे हम ई से ई पे जाके चेक करेंगे, हमारे पास एक नोड है ई, तो ई से हमारे पास क्या है यहाँ पे, ई इज कनेक्टेड टू ए, 0 नॉट कनेक्टेड, और हमारे पास है भी नहीं। ई इज कनेक्टेड टू बी, हाँ कनेक्टेड तो है, बट उसमें क्या है, कोई डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ, तो ये भी क्या है, 0। तो इसी तरह से हमने क्या किया है, सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वन इज इंसिडेंस मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज फिल्ड विद 0 और 1 और -1। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज रहती हैं, जो हमारे पास एडजेसेंसी थी वहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज रहती थी, 0 एंड 1, बट यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर फिल होगी, 0 1 एंड -1। हियर 0 रिप्रेजेंट्स दैट द रो एज इज नॉट कनेक्टेड टू कॉलम वर्टेक्स। हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे जो मैट्रिक्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ एजेस हैं उससे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ जो वर्टेक्स है उससे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रोज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 रिप्रेजेंट दैट द रो एज इज कनेक्टेड टू द आउटगोइंग एज टू कॉलम वर्टेक्स, एंड -1 रिप्रेजेंट द रो एज इज कनेक्टेड एज इनकमिंग एज टू कॉलम वर्टेक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ए है, यहाँ पे हमने सारी जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ एजेस थी उनको रिप्रेजेंट किया, एंड इस साइड हमने सभी को क्या किया, जितनी नंबर ऑफ हमारे पास वर्टिसेस थी सबको रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन रहती है, 1 -1 एंड 0। तो 0 कब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ पे ये डायरेक्शन शो कर रहा है कहाँ पे, E1, तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ए इज कनेक्टेड टू सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास E2 क्या है, यहाँ से हमें इनकमिंग और आउटगोइंग एजेस देखनी है। तो अब क्या है, ए से क्या है, सी पे जा रहा है, ठीक है, कौन सी एज है, E2 भी क्या है, ए से जा रही है, और E3 क्या है, E3 ये वर्टेक्स एज है हमारे पास, बट वो क्या है, उसके ऊपर इनकमिंग है। जो इनकमिंग एज होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -1, और जो कनेक्टेड ही नहीं है, जैसे E4 है, E4 हमारे ए से जो वर्टेक्स है
उससे क्या है कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. E5 इज नॉट कनेक्टेड टू A, तो उसको भी हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. वैसे ही हम जितनी नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उनको सबको क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम B पे चलते हैं. B से हमने क्या किया, E1 क्या है, उसके ऊपर इनकमिंग है, तो इनकमिंग एज है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -1 पे. जो आउटगोइंग है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नॉट कनेक्टेड है उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो उसी बेसिस पे हमने पूरी मैट्रिक्स को क्या किया है, इसको रेडी किया है. नेक्स्ट वन इज adjacency list representation. In this representation, the n rows of the adjacent matrix are represented via linked list. यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपको पता ही होगा हमारे पास क्या था यहाँ पे, जब भी हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, तो जब सिंगली लिंक लिस्ट थी तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, नोड को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे. जब हम नोड को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे यहाँ पे, तो क्या होता था, द फर्स्ट वन पार्ट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता था, डेटा को, कि डेटा का स्टोरेज होगा. और नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पॉइंटर में क्या होता था, स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे, जैसे हमने डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे. अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कि हमारे पास नंबर ऑफ जितनी एजेस हैं वो सबकी हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद जो जो एज क्या है आउट गोइंग है उसको क्या करेंगे, हम इसके लिस्ट में कनेक्ट करेंगे आगे आगे. तो ए से बी पे जा रहा है, ए से मैंने क्या किया, बी को कनेक्ट कर दिया. अब आगे ए से और कौन कौन सी कनेक्टेड है, सी, तो ये उसके बाद स्टोर कर दिया. अब सी, उसके बाद उसके ए के साथ कोई भी नोड हमारी क्या है, स्टोर नहीं, कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, लास्ट पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेंगे नल. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मेरे पास बी से कौन सी जो आउट गोइंग है वो कौन कौन सी है, एक तो डी है, नेक्स्ट वन इज ई. तो हमने उन दोनों को क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. वैसे ही हमारे पास जितनी नंबर ऑफ एज वर्टेक्स हैं उन सभी को हम एक लिस्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. And the next one is, this representation can also be implemented using array as follows. तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे A से क्या है 0 1 2 3 4, हमारे पास एरे को हम ऐसे ही लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देन द एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ द एरे इज 0, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे उसको. नेक्स्ट वन, A से कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको वैसे स्टोर कर देंगे. नेक्स्ट वन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, अभी तक हमने क्रिएशन ऑफ ग्राफ किया कि कैसे हम उसको ग्राफ करते हैं और वो मेमोरी में स्टोर होता है. नेक्स्ट वन इज इंसर्शन. 2 major components of a graph are vertex and edge, therefore a node or an edge or both can be inserted into an existing graph. हमारे पास क्या होता है, जब भी इंसर्शन होता है, नहीं तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर नहीं तो मैं क्या करूँगी, एक एज को इंसर्ट करूँगी या फिर वर्टेक्स को इंसर्ट करूँगी. राइट, जैसे मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, बट मुझे क्या करना है, इंसर्शन करना है. तो मैंने क्या किया, एक और वर्टेक्स उसमें ऐड कर दी. जब मैं उसमें वर्टेक्स ऐड करूँगी तो उसके अंदर मुझे ना उसको कनेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ एजेस भी क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी. तो दैट इज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसर्शन ऑपरेशन को. डिलीशन, द डिलीट ऑपरेशन आइदर डिलीट अ वर्टेक्स और एन एज फ्रॉम द ग्राफ. हम उसमें से नहीं तो किसी एज को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो किसी वर्टेक्स को भी वहाँ से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज ट्रावर्सिंग अ ग्राफ. ट्रावर्सिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ग्राफ ऑपरेशन. अ ग्राफ ट्रावर्सल मीन्स विजिटेड ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ. ट्रावर्सिंग मीन्स हमारे ग्राफ के अंदर जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उन सभी को हमने क्या करना है, विजिट करना है. देयर आर वेरियस मैथड for visiting the vertices in a graph. There are DFS and BFS. 2 methods है हमारे पास, depth for search and breadth for search. इसको मैं आपको properly explain करूँगी. First one is DFS. DFS traversal of a graph produce spanning tree as a final result. So what is spanning tree? स्पैनिंग ट्री इज अ ग्राफ विदाउट लूप, जिसके अंदर हमारे पास वो क्लोज नहीं होता है, ओपन एक क्या होता है,
ग्राफ होता है, कोई भी क्लोज लूप नहीं होगी हमारे पास उसके अंदर, दैट इज अ स्पैनिंग ट्री। अभी हमारे पास नॉर्मल जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, क्लोज लूप का होगा। जब हम उसकी ट्रावर्सिंग करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, एक जब भी उसकी ट्रावर्सिंग फाइनल हो जाएगी, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री जनरेट होगा। वी यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम जब भी स्टोरेज करते हैं तो हम किसको यूज कर रहे हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं इसके अंदर, किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जब हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो क्या है, विद मैक्स साइज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। तो हमने वो स्टैक उस साइज का बनाना है जितना हमारे ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ नोड्स है, उस साइज का हमने क्या करना है, ग्राफ स्टैक जनरेट करना है। फर्स्ट वन इज स्टैक, डिफाइन अ स्टैक ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, एंड द सेकेंड वन इज सेलेक्ट एनी वर्टेक्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। उसके अंदर ग्राफ के अंदर मुझे एक कोई भी वर्टेक्स चूज करनी है जो कि हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमने ट्रावर्सिंग स्टार्ट करनी है। विजिट दैट वर्टेक्स एंड पुश इट इनटू द स्टैक। हमें क्या करना है, उस वर्टेक्स को क्या करना है, हमें विजिट करना है, देन पुट दैट वर्टेक्स ऑन टू द स्टैक। नंबर 3, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स। मैंने आपको एडजेसेंट बताया था कि जो क्या होता है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो वाली वर्टिसेस। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, तो मेरे पास इसके एडजेसेंट कौन सी नोड्स हैं, ये दो नोड्स हैं। तो उनमें से हम क्या करेंगे, जो भी अनविजिटेड होगी, जो कि हम पहले विजिट नहीं कर चुके हैं, उसको हमने क्या करना है, विजिट करना है। मार्क इट एज विजिटेड, डिस्प्ले इट, पुश इट इन अ स्टैक, ठीक है। इफ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड, अगर हमारे पास कोई भी वर्टेक्स ऐसी नहीं है कि जो विजिट हुई नहीं है, मतलब सब जितनी भी नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो सब क्या हो चुकी है, विजिट हो चुकी है, कोई भी ऐसी नहीं बची है जो विजिट नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, पॉप अप अ वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक। तो स्टैक के टॉप पे जो भी वर्टेक्स होगी हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। It will pop up all the vertices from the stack which do not have adjacent vertices। वैसे हमारे पास क्या होता है, जो vertices हमारे पास आती जाएंगी आगे, कि जिसकी कोई भी vertex ऐसी नहीं बची है, जो adjacent vertex है कोई भी ऐसी नहीं है जिसको हम विजिट ना कर चुके, तो उसको हमने क्या करना है, पॉप करते रहना है। रिपीट रूल 1 and 2 until the stack is empty। जब तक हमारे पास स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता, इट मीन्स हमारी ट्रावर्सिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, देखो, नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैं वो कितनी है, 7 है। तो हमने एक स्टैक जनरेट किया, राइट। अब हमारी जो स्टेप 1 है, सिलेक्ट ए एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स। हमने क्या किया, यहाँ पे ए को एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। इसको ए को हमने एज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या किया, सेलेक्ट किया, देन उसको विजिट किया, विजिट ए एंड पुश ए ऑन टू द स्टैक, और हमने क्या किया, उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। नेक्स्ट वन, अब हमें क्या करना है, उसके अंदर देखना है कि ए जो है उसकी नेबर जो वर्टिसेस हैं वो कौन कौन सी है। तो उसकी नेबर वर्टिसेस एडजेसेंट या एडजेसेंट बोल सकते हो, इसकी एडजेसेंट एक ये है और एक ये है, 3 है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी वर्टेक्स को उसको फर्स्ट आप क्या करते हो, विजिट करते हो। हमें यहाँ पे किसी एक वर्टेक्स को विजिट करना है एक टाइम पे, तो इसकी जो एडजेसेंट वर्टेक्स है हमें इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है और उसी को आगे लेके चलना है। तो मैंने यहाँ पे बी को चूज़ किया है, तो बी क्या है, इसकी नेबर वर्टेक्स है। तो हमने क्या किया, इसको वी को विजिट किया एंड पुश बी ऑन टू दी स्टैक, और बी को हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट वन, स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया, विजिट एडजेसेंट ऑफ बी। अब हम बी पे आ चुके हैं, हमने क्या किया, बी के एडजेसेंट कौन कौन से थे, ई एंड सी, 2 एडजेसेंट थे, एंड ए क्या है, अगर मैं इसके नेबर्स लिखूं बी के, तो कौन कौन से हैं, ए, ई एंड सी, जो कि एडजेसेंट है। तो ए हमारा ऑलरेडी क्या है, विजिट हो चुका है, राइट। तो ए को हम दोबारा विजिट नहीं करेंगे, तो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। हमारे पास 2 नोड्स हैं, ई एंड सी। तो ई एंड सी हमारे पास जब 2 नोड्स हैं, सो मैंने कंटिन्यू किया सी के साथ।
तो मैंने क्या किया, किसको विजिट किया, सी को विजिट किया एंड पुश सी ऑन टू दी स्टैक, और मैंने सी को क्या किया, उसके अंदर पुश कर दिया. नेक्स्ट वन इज विजिट एडजेसेंट ऑफ सी. अब मेरे को सी पे जाना है और उसके एडजेसेंट कौन कौन से हैं. सी के एडजेसेंट देखो मेरे पास कौन कौन से हैं, एक तो बी है, एक ई है, एफ एंड नेक्स्ट वन इज जी. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. बी हमारे पास ऑलरेडी विजिटेड है, वी को हम अगेन मेरे स्टैक के अंदर है तो उसको मैं दोबारा विजिट नहीं करूँगी. अब नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास ई, एफ एंड जी. तो मैंने क्या किया, ई की तरफ मूव किया और ई को मैंने क्या किया, विजिट किया, और ई को क्या किया, उसके अंदर स्टैक के अंदर पुश कर दिया. विजिट एडजेसेंट ऑफ ई विच इज़ नॉट विजिटेड. अब मुझे ई के एडजेसेंट देखने हैं जो कि मैंने विजिट ना किए हो अभी तक. तो ई के एडजेसेंट कौन कौन से थे मेरे पास, यहाँ पे ए है, बी है, सी, डी है एंड एफ. ए बी सी डी एंड एफ जो कि उसके एडजेसेंट है. ए ऑलरेडी विजिटेड है, बी ऑलरेडी विजिटेड है, सी को भी हम विजिट कर चुके हैं, ऑलरेडी हमारे स्टैक के अंदर है. तो मेरे पास दो ही नोड्स रह गए हैं, नहीं तो आप डी को विजिट कर सकते हो, नहीं तो एफ को विजिट कर सकते हो. तो इसके अंदर मैंने मूव ऑन किया किसकी तरफ, डी की तरफ, और उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया. अब नेक्स्ट है मेरे पास डी पे. जब हम आ गए तो डी पे हम चेक कर रहे हैं, जब डी पे पहुंच गया आके, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम डी सो यूज बैक ट्रैक. हम क्या करते हैं, जब भी हम DFS यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या यूज़ होता है, बैक ट्रैकिंग हम करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हम आए थे वहाँ से हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे और डी को क्या करेंगे, डी को यहाँ से पॉप कर देंगे. ठीक है, पॉप डी फ्रॉम दी स्टैक. देखो डी को मैंने यहाँ से क्या किया, पॉप कर दिया. नेक्स्ट वन, विजिट एनी एडजेसेंट ऑफ ई. अब नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू क्या है, नेक्स्ट जो टॉप में बचा है वो क्या है, ई. अब मैं ई पे आ चुकी हूँ. यहाँ पे ई पे जब आए तो ई के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, एक तो डी है, ए है, बी है, सी है एंड एफ. अब हमारे पास सिंगल ऐसी नोड बच गई है जो अभी तक मैंने विजिट नहीं करी है, दैट इज एफ. सो हम क्या करेंगे, विजिट एफ एंड पुश एफ ऑन टू द स्टैक, देन एफ इज हेयर इन द स्टैक. नेक्स्ट वन इज विजिट एडजेसेंट ऑफ एफ विच इज नॉट विजिटेड, दैट इज जी. अब मेरे को जी एफ के एडजेसेंट निकालने हैं, दैट इज ई कॉमा सी एंड जी. तो ई ऑलरेडी विजिटेड है, सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो नेक्स्ट वन इज जी. तो मुझे क्या करना है, जी की तरफ मूव करना है, और जी को मैंने क्या किया, विजिट किया और अपने स्टैक के अंदर उसको पुश कर दिया. नेक्स्ट है मेरे पास स्टेप नंबर 9, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम जी. अब मेरे पास ऐसी कोई भी वर्टेक्स नहीं है जी के पास जो कि मैंने अभी तक विजिट ना करी हो. जी के दो नेबर्स हैं, फर्स्ट वन इज सी एंड सेकेंड वन इज एफ, बट मैंने दोनों को विजिट कर लिया है. तो हम कहाँ पे जाएंगे, जी को मैंने क्या किया, पॉप कर दिया एंड मूव किया एफ पे, बैक ट्रैक कर लिया. जब हम एफ पे गए तो अब मैंने एफ पे जाके चेक किया कि एफ का ऐसा कोई नेबर है जो मैंने विजिट ना किया. तो एफ का कोई भी नेबर ऐसा अवेलेबल ना है जो कि मैंने विजिट ना किया है. तो मैंने क्या किया, अगेन बैक ट्रैक किया और एफ को पॉप कर दिया वहाँ से. तो अब नेक्स्ट वैल्यू इज ई. जब हम ई पे आए, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम ई सो यूज बैक ट्रैक, पॉप ई फ्रॉम द स्टैक. तो मैंने इसको क्या किया, स्टैक में से पॉप कर दिया, किसको, ई को यहाँ से हटा दिया और मैं कहाँ पे आ गई, सी पे, बैक ट्रैक करके. सो नेक्स्ट वन इज देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम सी. अब हम करंटली कहाँ पे हैं, हम सी पे हैं इस टाइम पे. सी का ऐसा कोई भी नेबर नहीं रहा है, सी का ऐसा कोई भी एडजेसेंट नहीं है जिसको हमने अभी तक विजिट ना किया, सबको विजिट कर चुके हैं. तो सी को भी हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया. और आगे कौन सा वैल्यू है मेरे पास, बी. तो हम कहाँ पे चले गए, बी पे चले गए और बैक ट्रैक कर लिया बी की तरफ. जब हम बी पे गए तो बी से हमने चेक किया कि बी का ऐसा कोई एडजेसेंट है जिसको अभी तक विजिट ना किया हो. तो सभी को हम क्या कर चुके हैं, विजिट कर चुके हैं. तो बी से हमने क्या किया, उसको पॉप किया
और ए की तरफ क्या किया हमने, बैक ट्रैक किया. नेक्स्ट वन इज ए. जब हम ए पे आ गए तो हम ए पे जाके चेक किया, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम ए, सो यूज बैक ट्रैक फ्रॉम ए फ्रॉम दिस ट्रैक. और हमने इसको क्या किया, पॉप ए फ्रॉम दिस स्टैक, और ए को भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपने स्टैक में से. देन देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो स्टैक है इट इज़ एम्प्टी. सो इट मीन्स हमारा जो ट्रावर्सिंग है, डीएफएस ट्रावर्सिंग, इट इज़ कंप्लीटेड. सो हम चेक करते हैं अब कहाँ कहाँ से हमने इसको विजिट किया था. ए से हम यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे, देन यहाँ पे, और फिर यहाँ पे. यहाँ पे हमने बैक ट्रैक किया, अगेन हमने इधर से इधर मूव किया, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ से हम बैक ट्रैकिंग करते हुए कहाँ पे, ए पे चले गए, जो हमारी स्टार्टिंग नोड थी. अब बाकी जिस एज के थ्रू हमने विजिट नहीं किया है, जैसे ये है, ये वाली एज है, नेक्स्ट वन इज दिस, तो इन सभी एजेस को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. जिस एज के थ्रू हमने विजिट किया है उसी एज को हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ के अंदर शो करेंगे, और बाकी जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे. तो जब हम सबको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या रहा, स्टैक बिकम एम्प्टी, सो स्टॉप डीएफएस ट्रावर्सल. जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो हम डीएफएस ट्रावर्सल को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. फाइनल रिजल्ट ऑफ डीएफएस इज स्पैनिंग ट्री. सो दिस इज अ स्पैनिंग ट्री. इसको हम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं बिकॉज ये कहीं से भी क्या है, क्लोज पाथ नहीं शो कर रहा है. ये क्या है, सब साइड से क्या है, इट इज ओपन. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज BFS. We use stack data structure. We use Q data structure with maximum size of total number of vertices. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, Q को यूज़ करते हैं. वहाँ पे हम stack को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, Q को यूज़ करते हैं. In graph to implement BFS of a graph. BFS is also produce a spanning tree in a final result. ग्राफ विदाउट लूप, जो कि हमारा डीएफएस में फाइनल में हमने स्पैनिंग ट्री जनरेट किया था, सेम हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, एक स्पैनिंग ट्री जनरेट करेंगे. सेम डिफाइन अ डेटा क्यू ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ. हमारा जो क्यू जनरेट होगा उसको जितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास है उतनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो उसका साइज है क्यू को उसको जनरेट कर देंगे. सेलेक्ट एनी वर्टेक्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रावर्सल. उसके इसमें भी क्या करेंगे, select any vertex as a starting point. Visit the adjacent unvisited vertex. जो भी हमारे पास unvisited vertex होंगी उन सभी को हम क्या करेंगे, visit करेंगे. So I will give you an example. Same example है जो हमने DFS में किया है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या है, एक ग्राफ जनरेट हो गया है, राइट. नंबर ऑफ हमारे पास जो एजेस हैं वो कितनी है, 7 है. तो हमारा क्यू हमने 7 साइज का ले लिया है यहाँ पे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, सेलेक्ट वर्टेक्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ए को हमने एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लिया और उसको हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, क्यू के अंदर. ठीक है. और यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया. अब वहाँ पे हम क्या करते थे, जो भी एडजेसेंट वर्टिसेस होती थी वहाँ से हम क्या करते थे, अगर इसकी एडजेसेंट 3 है तो वहाँ पे हम क्या करते थे, किसी एक को चूज करते थे और उसी के साथ हम आगे फॉरवर्ड जाते थे. बट यहाँ पे क्या होगा, विजिटेड ऑल एडजेसेंट ऑफ ए विच आर नॉट विजिटेड, दैट इज डी, ई एंड बी. यहाँ पे जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ क्या होंगी, एजेस होंगी उसकी नेबर या एडजेसेंट, उन सभी को हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे और उनको क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे. बट वो जो वर्टेक्स है वो कौन से वाली होनी चाहिए, जो कि विजिट ना हुई हो अभी तक. दैट इज इंसर्ट न्यू विजिटेड वर्टेक्स इनटू द स्टैक क्यू एंड डिलीट ए फ्रॉम द क्यू. अब क्या होगा, वो क्या करेगा, ए को क्या करेगा, क्यू में से डिलीट कर देगा और उसकी जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको क्या करेगा, इंसर्ट करेगा किसके अंदर, क्यू के अंदर. और जैसे मेरे पास इसके एडजेसेंट हैं बी, डी एंड ई, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप किसी भी सीक्वेंस के अंदर इसको क्या कर सकते हो, अपने क्यू के अंदर राइट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि हमें बी से ही स्टार्ट करना है, आप डी भी पहले लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो एंड बी भी लिख सकते हो. तो मैंने क्या किया है, डी, ई एंड बी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, सॉरी
देखो अब हम यहाँ पे गए, अब हमारे पास क्यू के अंदर जो सबसे फर्स्ट नोड थी वो कौन सी थी, डी थी। यहाँ पे हमारे पास डी थी, तो हम अब कहाँ पे मूव किए, डी पे मूव किए। और क्या किया, विजिट ऑल एडजेसेंट ऑफ डी विच आर नॉट विजिटेड, देयर इज नो वर्टेक्स। अब हम डी पे गए और उसके एडजेसेंट दिखा कौन कौन सी वर्टेक्स है, और हम क्या करेंगे, उनको विजिट करेंगे। बट डी के एडजेसेंट हमारे पास दो वर्टेक्स है, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज ई। बट ए एंड ई ऑलरेडी हमारे क्यू के अंदर अवेलेबल है, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है, विजिटेड नोड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको वहां से रिमूव करेंगे डी को, एंड नेक्स्ट वन हमारी जो नोड है वो कौन सी है, ई। अब हम ई पे जाएंगे और चेक करेंगे, विजिट्स ऑल एडजेसेंट विच आर नॉट विजिटेड, दैट इज सी एंड एफ। अब ई से कौन कौन सी नोड्स हैं जो हमने अभी तक विजिट ना कियो, ई के एडजेसेंट कौन सी है, डी है, ए है, बी है, बट ये तीनों ऑलरेडी क्या है, विजिट हो चुकी है। जो विजिट ना की है वो कौन सी है, दैट इज ए एंड सी। तो हमने क्या किया, सी एंड एफ। तो हमने क्या किया, यहाँ से ई को यहाँ से डिलीट कर दिया क्यू में से, एंड सी एंड एफ को हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, क्यू के अंदर। नेक्स्ट वन इज स्टेप 5, विजिट ऑल एडजेसेंट ऑफ बी। अब नेक्स्ट मेरे क्यू के अंदर कौन सी नोड आ रही है, बी। तो हमने क्या करना है, उसके जितने एडजेसेंट है उन सबको विजिट करेंगे। तो विच आर नॉट विजिटेड देयर इज नो वर्टेक्स। अब बी के हम चेक करेंगे कौन कौन से ऐसे एडजेसेंट हैं जिनको हमने विजिट नहीं किया है। ए को ऑलरेडी कर चुके हैं, ई को भी कर चुके हैं, सी को भी। देन मूव टू दी नेक्स्ट नोड, एंड बी को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सी। जब हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, सी पे, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, सी पे जब हम गए तो हमारे पास ये देखो, विजिट ऑल एडजेसेंट ऑफ सी, विजिट ऑल एडजेसेंट ऑफ सी विच आर नॉट विजिटेड, दैट इज जी। अब हमने क्या किया, सी को यहाँ से रिमूव कर दिया, और सी के एडजेसेंट हम चेक करेंगे कौन कौन से हैं। बी है, बी ऑलरेडी विजिटेड है, ई इज ऑल्सो विजिटेड, एंड एफ इज ऑलरेडी विजिटेड, एंड एक ही हमारे पास नोड थी, दैट इज सी, दैट इज जी, जो कि अनविजिटेड थी। तो हम क्या करेंगे, जी को अपने क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट वन इज एफ। अब हम कहाँ पे जाएंगे, एफ पे। विजिट ऑल एडजेसेंट ऑफ एफ विच आर नॉट विजिटेड, देयर इज नो वर्टेक्स, डिलीट एफ फ्रॉम दी क्यू। हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, किसको, एफ को। कहाँ से, क्यू में से डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्यू के अंदर एक ही नोड बची है, दैट इज जी। तो हम क्या करेंगे, विजिट ऑल एडजेसेंट ऑफ जी विच आर नॉट विजिटेड, देयर इज नो वर्टेक्स, वी डोंट हैव एनी वर्टेक्स दैट इज नॉट विजिटेड, सो द क्यू इज एम्प्टी, राइट। तो जब हमारा क्यू क्या है, डिलीट जी फ्रॉम क्यू, क्यू में से हमने क्या किया, जी को भी डिलीट कर दिया, देन द क्यू इज एम्प्टी। आफ्टर दैट जब हमारा क्यू एम्प्टी हो जाता है, इट मीन्स द ट्रावर्सिंग, द BFS ट्रावर्सिंग इज कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमारे पास देखो, जो विजिट किया है उसको मैंने क्या किया है, रेड से शो किया है, राइट। किस किस नोड को किस किस एज के थ्रू मैंने विजिट किया है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जिस एज के थ्रू मैंने विजिट नहीं किया है उसको मैं क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। तो आफ्टर रिमूविंग ऑल दीज एजेस क्या होगा, एक स्पैनिंग ट्री हमारे पास क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, दैट इज दिस वन। क्यू बिकम एम्प्टी, सो स्टॉप BFS process. Final result of BFS is spanning tree by removing unused edges. Thank you. स्टॉप नहीं हुआ,
कोई बात नहीं, अब कर दो आप, हो चुका है मेरा, लास्ट का कट करवा दूंगी। ये माउस नहीं चल रहा है, अरे इसको स्टॉप कर दूँ।